Hello everyone, welcome to Chemistry. First question है, the valence electron pair of an atom repels one another and orient themselves far apart from each other so that repulsion between them is maximum. This is known as, so this is simply the definition of VS-EPR theory, and this theory is very similar to the magnetism effect. Second question is, the bond angle between the orbital in the geometrical structure of methane is, so as we all know that the hybridization in CH4 molecule is sp3 एंड sp3 की अगर हम कुछ स्पेक्स की बात करें तो उनमें शामिल है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहीड्रल एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन एवरी ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री C degrees only. So the correct option will be 109.28. 0.28 is the accurate most answer, but round off figure 0.5 भी यूज होता है. तो इनमें से दोनों में से कोई सा भी जो आंसर लिखा होगा दोनों ही करेक्ट होंगे, राउंड ऑफ फिगर भी और करेक्ट ऑप्शन भी. इन्हीं ऑप्शन में 109.5 भी आ सकता है तो वो भी इक्वली करेक्ट होगा. Which of the following shapes is associated with sp2 hybridization? So from the specs table of the previous slide we know that the trigonal planar is the shape of sp2 hybridization. So the correct option will be trigonal. Question number 4 is, a molecule of ethine is possessed of, तो first of all the molecule of ethine is somewhat like this, और इसमें हम लोग जानते हैं कि between the carbon the most initial bond is of the sigma bond, और उसके बाद के जो बाकी होते हैं वो होते हैं हमारे पास pi bond, क्योंकि इसमें होती है हमारे पास sp1 hybridization. So the correct option will be 1 sigma bond and 2 pi bonds. The energy required for the removal of least tightly bound electron from an isolated atom in gaseous state is called the ionization potential. Question number 6 is, the electronic configuration of carbon in excited state may be represented by, so in the ground state 2pz orbital is empty, and when the carbon goes into the excited state all of the L shell becomes hybridized, so the configuration becomes 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. So according to this, option D is the correct answer. Question number 7 is, which of the following orbital arrangement is not coplanar? So what is coplanar? Coplanar is basically the thing 2D structure. For example, if I talk about what is the difference between a circle and a sphere, circle जो है मेरे पास एक 2D structure है, और जो sphere है मेरे पास वो मेरे पास 3D structure है. तो sphere को मैं कोप्लेनर नहीं कह सकती क्योंकि वो एक प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसी तरीके से मैं जानती हूँ कि sp3 का मेरे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहीड्रल. सिमिलरली sp2 का जो होता है ट्राइगोनल, एंड सब्सिक्वेंटली sp का होगा मेरे पास लीनियर. तो लीनियर का तो मेरे पास 100% श्योर आंसर है कि ये कोप्लेनर होता है. sp2 में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है. तो जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हमारे पास अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल की वो बिल्कुल कोप्लेनर होती है. उसमें एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड होता है कि हम इनको 2D स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं. बट इफ़ वी कंपेयर इट टू द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता कोप्लेन पे. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. The shape of d orbital is simply the dumbbell shape. Dumbbell is similarly the thing which is used in the exercise, and that is same dumbbell, and it similarly looks like the dumbbell. That is why it is called dumbbell shape. Which of the following molecules have ionic bond? तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, सबसे पहला मॉलिक्यूल है मेरे पास वाटर. तो वाटर तो आयोनिक बॉन्ड होता ही नहीं है वाटर में, तो हमें पता है कुछ बेसिक चीज़ें हैं. उसके बाद अगर मैं हूँ तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि HCl है और KCl है ना. अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि यहाँ भी HCl KCl है, दिखने में तो एक जैसे हैं और मुझे पता है इन दोनों में से एक आयोनिक होगा, बट HCl जो होता है उसमें तो कोवेलेंट होता है, तो मे बी KCl में भी कोवेलेंट होता होगा. तो इसकी जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है याद करने की या इस तरह की MCQs को सॉल्व करने की वो ये है कि एन आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म थ्रू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. ये तो बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई, सबको पता है, डेफिनेशन है. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ कि आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कैटाइन विच इज यूजुअली अ मेटल. यह है बात नोट करने की, अ मेटल एंड एन एन विच इज़ अ नॉन मेटल. तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो यूजुअली फॉर्म करता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में. तो वी नो दैट पोटेशियम हेयर इज अ मेटल एंड क्लोरीन हेयर
इज अ नॉन मेटल। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा KCl। HCl को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है इन दोनों ऑप्शंस को देख के। बट बी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी KCl। Which of the following has zero dipole moment? तो dipole moment is simply works as a vector, तो हमें सिंपली ये देखना है कि इन तमाम गिवन ऑप्शंस में कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी अरेंजमेंट ऐसी है जिसमें पोलैरिटी फॉर्म हो रही है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं हाइड्रोजन को, तो ये भी सिंपली एज अ वेक्टर फॉर्म है, इसमें भी कोई पोलैरिटी हमें नजर नहीं आएगी। सिमिलरली इन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 देयर इज नो पोलैरिटी ऑब्जर्व, बोथ द चार्जेस विल कैंसिल ईच अदर। और सिमिलरली Cl4 में भी यही होगा बिल्कुल। अगर मैं इसको वेक्टर की तरीके से डिस्कस करूं तो दिस वेक्टर विल कैंसिल आउट दिस वन एंड दिस वन। अपेरेंटली हमारे पास क्या होगा, नथिंग विल बी लेफ्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम हैव जीरो डायपोल मोमेंट। The factor responsible for chemical bonding includes A. Electrostatic force of attraction, B. Sharing of electrons, C. Removal of electrons। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, बट दिस इज नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर और द कंप्लीट आंसर। तो जो बाकी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव है, एक्यूरेट है और कंप्लीट आंसर है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए एंड बी, बिकॉज ऑप्शन ए इज रिप्रेजेंटिंग द आयोनिक बॉन्ड एंड ऑप्शन बी इज रिप्रेजेंटिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। और यही बेसिक तरीन हमारे पास बॉन्डिंग होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जितनी भी होती हैं वो इनकी डेरिवेटिव्स होती हैं, मतलब जो मोस्ट बेसिक होंगी वो होंगी वो क्या है, आयोनिक एंड कोवेलेंट। The bond between HCl is ionic polar covalent. Correct option is the polar covalent bond because of the size difference between hydrogen and chlorine. क्लोरीन का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो इस वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से पोलैरिटी फॉर्म हो जाती है इन द क्लोरीन with a partial negative sign and similarly in the hydrogen with a partial positive sign. The power of an electron to attract the shared pair of electron is known as electronegativity. This is the correct option. Elements of group 1b are called, तो अगर मैं group 1b को देखूं इसमें, तो ये मेरे पास आते हैं ग्रुप 1b के एलिमेंट्स, जिनमें जो लास्ट वाले हैं वो न्यू एलिमेंट्स हैं, उनको अभी इतना डिस्कस नहीं करते, रेडियो एक्टिव है। मतलब जो मेजरली डिस्कस किए जाते हैं 1b ग्रुप में वो हैं कॉपर, सिल्वर एंड दिस गोल्ड। तो इनको कहा जाता है क्वाइनेज मेटल्स, क्योंकि पिछले एरा में इन्हीं को यूज़ किया जाता है एज अ कॉइन, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन अब डिफरेंट चीज़ों के हमारे पास कॉइन्स आने लग गए, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और ब्रास ETC, तो इसलिए इनको कहा जाता है क्वाइनेज मेटल्स। The minimum energy required to remove an electron from its outermost shell of the gaseous atom is called, and this question is very much similar to the question number 5 which we have discussed. Both are same question, only the wordings are different. तो इसका भी सेम ही आंसर होगा, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। पूछी एक ही चीज़ है बट थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। Which of the following species contain a polar covalent bond? So first of all it is magnesium fluoride, apart from that it is sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड में तो आयोनिक होता है, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड में तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट द डिफरेंस और द क्यूरी विल अकर हेयर कि मैग्नीशियम फ्लोराइड में होता है या नहीं। तो हम वही वाली थ्योरी को यूज़ करेंगे कि मैग्नीशियम इज़ अ मेटल एंड फ्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, तो इनके बीच कभी भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज आयोनिक। तो इसका मतलब है कि ये आयोनिक होगा, ये भी आयोनिक है, तो बचा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। Okay, now there is a spelling mistake, chloride, so this is the correct option. Bond energy provides the required energy to make or break a bond. It can be exothermic, endothermic, initially endothermic or both A and B. So it can be exothermic or endothermic because when we make a bond, energy is released. तो क्या हो गया हमारे पास, exothermic
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कोई ब्रेक करेंगे तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, व्हाट इट विल बी, एंडोथर्मिक. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी, बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो अभी तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे पीरियोडिक टेबल से, बट इस तरह के क्वेश्चन जब टेस्ट में आएंगे तो वहाँ तो हमारे पास किसी किस्म का पीरियोडिक टेबल नहीं होगा. तो इनको सॉल्व करने की ये छोटी सी ट्रिक होगी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे सेम ग्रुप की बात हो रही होगी, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे ही ग्रुप्स का पूछा जाएगा, जो कि ऐसे ही एलिमेंट्स का पूछा जाएगा जो कि थोड़े से कॉमन होता है. फॉर एग्जांपल वी नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एग्जिस्ट इन द सेम ग्रुप, ऑक्सीजन एंड सल्फर. इस तरह की जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आएंगे, मींस ग्रुप से रिलेटेड पूछा जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देखती हूँ, लिथियम एंड पोटेशियम. तो लिथियम एंड पोटेशियम सेम ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूँ अब मैग्नीशियम एंड सिलेरियम, तो मैग्नीशियम यहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके बाद सिलेरियम का एग्जिस्ट करता है मेरे पास, यहाँ बात करूँ यहाँ पे. तो मैग्नीशियम और ये ना इनका ग्रुप सेम है और ना ही इनका पीरियड सेम है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. सिमिलरली इफ वी गो फॉर द बेरिलियम एंड सोडियम, तो यहाँ भी हम लोग क्या देखते हैं कि ना इनका पीरियड सेम है, क्या है, ना इनका ग्रुप सेम है, तो ये भी नहीं होगा इनका ऑप्शन करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लास्ट देखें क्लोरीन, ओके, एंड एंटीमनी, यहाँ भी हम लोग क्या देखते हैं कि ना इनका ग्रुप सेम है ना इनका. तो किस चीज़ का ग्रुप सेम है हमारे पास, ओनली लिथियम एंड पोटेशियम का. तो इस तरह के सवाल में जब भी आएंगे तो वहाँ पे सिमिलर ग्रुप का डिस्कशन होगा, क्योंकि सिमिलर पीरियड को याद करना या उसको जहन में बिठाना थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है ऑन द इंटर लेवल. तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है कि जो प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटी का अगर क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे किस चीज़ का जिक्र होगा हमारे पास, similarities in the group का. तो the correct option would be lithium and potassium. Ions, when an ionic compound is dissolved in the water, the best described as it becomes the hydrated ion. होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड हमारे पास वाटर में जाता है, क्योंकि वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर हमारे पास उसमें क्या है, पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है. वाटर आयोनिक नहीं है, H2 आयोनिक नहीं है, बट उसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है. तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी पॉजिटिव एलिमेंट होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है वो आयंस में ब्रेक हो गया, तो क्या होता है हमारे पास इसके अराउंड पे वाटर आ जाता है और नेगेटिव आयन के अराउंड भी वाटर आ जाता है. अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन वाटर H2O होता है हमारे पास, एंड O हैज स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव साइन एंड हाइड्रोजन सिमिलरली हैव स्लाइटली पॉजिटिव साइन. तो पॉजिटिव आयन के अराउंड जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है वाटर मॉलिक्यूल, उनमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, साइड आ जाते हैं. एंड सिमिलरली जब हमारे पास नेगेटिव आयन जो होता है उसके अराउंड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़ा सा सामने आ जाते हैं. होते वाटर ही हैं, लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सारे हाइड्रोजन इसकी तरफ आ जाते हैं एंड इनकी बैक साइड पे ऑक्सीजन होते हैं. एंड सिमिलरली जब पॉजिटिव आयन होता है हमारे पास उसके अराउंड ऑक्सीजन आ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बैक साइड पे चला जाता है. तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है. तो जो चीज़ कहलाती है वो कहलाती है हाइड्रेटेड आयन. 20th question is hypochlorous acid formula is, so this is simply a memory based question and the answer is HOCl. That's all for the second part of chapter number 4. अगर कोई क्यूरी है, सजेशन है या करेक्शन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या फिर इनपुट के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड लक.